اے میرے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں پہ میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے۔ آج کی جو سٹوری سینڈ کی ہے یہ مجھے عرفا نے سینڈ کی ہے، اور عرفا لکھتی ہیں: السلام علیکم آپی، میری زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آئیں، اور ایسی مشکلات آئیں جن کا بیان کرنا بھی میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپی، میں آج آپ کے ساتھ یہ سٹوری اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس کی اویئرنیس ملے اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، تاکہ ان کی زندگی میں بھی وہ مشکلات نکل جائیں، اور اگر ان کے پاس وہ مشکلات نہیں ہیں تو ان سے بچ سکیں۔ تو آپی، میں لکھ رہی ہوں اس لیے کہ میری بہنوں کی ہیلپ ہو جائے اور انہیں بھی اس سے فائدہ ہو۔ لکھتی ہیں سسٹر: السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اور آپی، مجھے آپ کا چینل بہت عرصے سے ملا، اور جس کی وجہ سے میں آپ کی ریگولر ویڈیوز دیکھتی ہوں اور آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر انسٹاگرام پہ آپ کے میسج کے رپلائی پہ میں نے کانٹیکٹ کیا، اور یہ سٹوری آپ کو سینڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے ساتھ ان کی بھی زندگی میں آئی پرابلم کو حل ہو جائے۔ لکھتی ہیں: میری زندگی میں ابھی بہت سے مسئلے مسائل چل رہے تھے، اور میرے پیرنٹس بھی مجھے بہت زیادہ اس چیز پہ ڈانٹا کرتے تھے کہ ایسے معاملات کیوں ہیں، کیونکہ ابھی میری بہت زیادہ نیگیٹو سوچ ہو گئی تھی۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے دشمنیاں بنا لی تھیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا رویہ بہت زیادہ برا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی مجھے آئے دن نئی سے نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو مجھ پہ الزام آتا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم آ جاتی تو ہر چیز کا بلیم مجھ پہ ہی آتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ ہی میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتی تھی، اور اس اریٹیشن میں میں بہت کچھ ایسا کر جاتی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے آپ ہی بہت زیادہ غصہ آتا تھا، میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی۔ انفیکٹ میں نے کئی بار خود کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، جس کی وجہ سے آپ ہی میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، اور اب تو میری اسٹڈی بھی چھڑوا لی تھی اور میں گھر پہ ہی رہتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، میں بہت زیادہ پیرنٹس کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا کرتی تھی، لیکن میرے بس کی بات نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آتا تھا اور میں اس غصے سے نکلتی تھی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا، اور پھر میں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے آسانی عطا کریں اور اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیں۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کون بدتمیزی کرتا ہے، اور میں اتنی بدتمیزی کر جاتی ہوں، لیکن جب مجھے غصہ آتا تھا کسی بھی بات پہ تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اور میں بہت زیادہ شاؤٹ کرتی تھی، بہت زیادہ عجیب عجیب باتیں کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے امی اور ابو کو بھی بہت زیادہ برا لگتا تھا۔ میں کنٹرول میں نہیں تھی، امی اور ابو مجھے یہی کہتے تھے کہ تم بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، اس لیے انہوں نے مجھے اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں کرنے دی، گھر میں بٹھایا تھا، اور یہ بات اور بھی زیادہ میرے لیے اریٹیشن کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ باقی سارے بہن بھائی پڑھ رہے تھے اور میں گھر میں تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو جاتی تھی، اور میں اکثر و بیشتر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بہت برا رویہ رکھتی تھی، جس کی وجہ سے میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں صرف اکیلی رہتی تھی، اور میرا روم بھی اکیلا تھا، یعنی کہ میں ایک الگ روم میں رہتی تھی۔ نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی میرے پاس آتا تھا، نہ ہی مجھ سے بات کرتے تھے، بلکہ میں موسٹلی اپنا زیادہ تر ٹائم سو کے گزارتی تھی، یا پھر عجیب سی تھاٹس اور عجیب سے وہم میرے ذہن میں آتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی تھیں، ڈفرینٹ قسم کی شرارتیں ہوتی تھیں جو کہ مجھے یہ کرنے پہ مجبور کیا جاتا تھا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اس طرح تو اور بھی زیادہ معاملات برے ہو جائیں گے۔ اب بھی جب مجھے غصہ آتا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، اور یہ کام مجھ سے ہو جاتے تھے، جیسے کہ ابو کی بہت ساری چیزیں جو کہ روم میں موجود تھیں وہ میں اٹھا کے چھپا دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں عجیب سا کوحرام بچ جاتا تھا، اور سب لوگ ایک دوسرے کو عجیب طرح لڑتے رہتے تھے، کبھی امی کو ڈانٹ پڑتی، کبھی بہنوں کو اور کبھی بھائیوں کو، اسی طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں۔ کبھی اپنے بہن بھائیوں کی چیزیں اٹھا کے چھپا دیتی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ بھی مجھے خوشی ہوتی تھی، اور میں
ऐसा नहीं करना चाहती थी। जब मुझे होश आता था और ये गुस्सा चला जाता था, तो उसके बाद आप ही मैं बहुत ज़्यादा रो-रो के अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी कि अल्लाह पाक मुझे क्या होता जा रहा है? मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ? इसका रास्ता आप निकाल दें, मैं नहीं जानती कि ये क्या मसला है। क्योंकि मैंने अक्सर बेशतर यूनिवर्सिटी में लड़कियों से सुना था कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए मैंने अम्मी को कहा कि मेरे साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास चलें ताकि मैं अपना चेकअप करवा सकूँ। जब गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरा चेकअप किया तो आप ही अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई भी मसला नहीं था, ना ही कोई मुझे प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट दिए और वो टेस्ट करवाने के बाद मेरी रिपोर्ट ठीक आई, जिस पे डॉक्टर ने मुझे सिर्फ़ मल्टीविटामिन दिए। मैं अभी डेली बेसिस पे ये मल्टीविटामिन खा रही थी और इसके साथ मुझ में एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट बहुत सारी अपनी रूम की चीज़ें जो कि सामने मौजूद नहीं थी, मैंने उन्हें फाड़ना और उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। और ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करके टूटने लग गईं, जिसकी वजह से अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डाँटा करती थी। इनफैक्ट मेरे रूम में जो मिरर लगे थे, मैंने वो भी तोड़ दिए थे और जब अम्मी मुझे डाँटती थी, तो मैं अम्मी को भी बहुत गलत बातें कह देती थी और बाद में जब मुझे होश आता था तो मैं रोती थी और अम्मी से सॉरी बोलती थी। फिर आप ही ये मसले मसाइल चलते जा रहे थे। इसी तरह मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी और बहन-भाई मुझसे नफ़रत करते थे। फिर अम्मी-अब्बू ने फ़ैसला किया कि मेरी शादी कर दें और उन्होंने मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते देखने शुरू किए। घर में मैं तीसरे नंबर पे थी और अभी मेरे से पहले बहन-भाई शादीशुदा नहीं थे। लेकिन मेरी हालत देखने की वजह से अम्मी-अब्बू ने सोचा कि मेरी शादी कर दें। लेकिन आप ही मुझे तो शादी के बारे में अभी नहीं सोचा ना था और ना ही मुझे अभी शादी करनी थी। अभी तो मैं अपनी लाइफ़ देखना चाहती थी और अपने आप को स्टेबल करना चाहती थी। लेकिन पेरेंट्स ज़िद कर रहे थे कि तुम्हारी शादी जल्दी कर देनी है। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और इस रोने की वजह से आप ही मेरे माइंड पे बहुत ज़्यादा बुरा असर होता था। जैसे ही मैं रोती थी उसके बाद आप ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इस गुस्से में अजीब-सी हरकतें करती थी। कभी घर से भाग जाने का दिल चाहता था, कभी बहुत ज़्यादा शोर मचाने का दिल चाहता था, कभी छत पे चढ़ के बहुत ज़्यादा ऊँची-ऊँची चीखें मारने को दिल चाहता था और कभी-कभी तो अपने कपड़े फाड़ने को भी दिल चाहता था। और अक्सर व बेशतर कमरे में जब मैं होती थी तो मैं इसी तरह करती थी। अपने कमरे में मैं कपड़े भी फाड़ दिया करती थी। और ये सारी चीज़ें देख के अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि क्या होता जा रहा है। अम्मी मुझे अक्सर व बेशतर यही कहती थी कि तुम नमाज़ पढ़ के अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट किया करो और अल्लाह ताला से दुआएँ माँगा करो कि अल्लाह ताला रहम करे। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे बहुत सारी सूरतें, बहुत सारे दम किया करती थीं और इन दम करने की वजह से मुझे कुछ बेहतरी हो जाती थी, लेकिन दोबारा से वही हाल हो जाता था। इनफैक्ट आप ही पीरियड्स के दिनों में भी मुझे नहाने का दिल चाहता ही नहीं था या जब मेरे पाक होने के दिन होते थे, तब भी मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं गुस्ल करूँ और कई-कई दिन तक मैं गुस्ल ही नहीं करती थी और इस वजह से भी आप ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और अगर जैसे ही मैं गुस्ल कर लेती थी, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलनी शुरू हो जाती थीं। गुस्सा, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस ये सब कुछ मुझे आके जकड़ लेता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि गंदगी में मुझे सुकून मिल रहा है और अल्लाह के कलाम में मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। अभी मुझसे तो अब सोया भी नहीं जाता था। छिपकली, साँप और अजीब-अजीब से कीड़े-मकोड़े मेरे ख्वाब में आते थे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और तो और अगर सोने लगूँ तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अभी छत मुझ पे गिर जाएगी और मैं इसके बीच में दब जाऊँगी और मुझे नींद नहीं आती थी, जिसकी वज़ह से मैं सारी-सारी रात जागती रहती थी और अजीब-अजीब हरकतें करती थी, अजीब-अजीब सी बातें करने लग गई थी। इनफैक्ट अब्बू और भाइयों के सामने भी मुझे अजीब-सी हरकतें हो जाती थी। ना ही मैं सर पे दुपट्टा लेती थी, ना ही मैं गले में दुपट्टा लेती थी, बल्कि अजीब-सी बन के फिरती थी। ये मॉडर्निज़्म नहीं था लेकिन ये अजीब-सी गंदगी थी, जो कि मेरे अंदर से निकल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे क्या तकलीफ़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। जब ये चीज़ें होती थी उसके बाद आप ही जब मुझे होश आता था तो मुझे पता चलता था कि ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ख़राबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझती थी कि मेरे में कोई मसले-मसाइल हैं, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई मामलात होते हैं। जब अम्मी ने मेरी ऐसी चीज़ें देखी तो अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गईं और ख़ास तौर पे अब्बू ने जब मुझे इस तरह की कंडीशन में देखा तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा घबरा गए कि पता नहीं ये क्या हो रहा है।
फिर इन दोनों को भी समझ आ गई कि शायद मेरे साथ कोई और मामलात चल रहे हैं, इसलिए अम्मी और अब्बू ने मुझे किसी आलिम को दिखाने का सोचा। हमारे मोहल्ले में एक आंटी रहती थी जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्लामी थी और हर तरह से गाइड कर सकती थी। अम्मी मुझे उनके पास लेके गईं। फिर उन्होंने बताया कि आप बेटी को कहें कि वो नमाज़ पढ़ा करे और नापाकी को अपने से दूर रखा करे। जितना जल्दी हो सके अपने आप को साफ़ किया करे और गुस्ल किया करे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बेटियों को जो कि दौराने हैज़ या दौराने पीरियड अपना ख़्याल नहीं करती, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही पीरियड्स आएँ और जैसे ही साइकिल स्टार्ट हो, तो अपना जो भी निज़ाम है उसकी हिफ़ाज़त करें और अपनी प्रॉपर केयर करें, और वो चीज़ें जो हम डस्टबिन में डालते हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से पैक करके डस्टबिन में डालें, ताकि वो किसी शैतानी चीज़ के ज़ेर असर ना आ सकें। तो मैंने ऐसे ही किया, और उन्होंने ये भी बताया कि अपने लिबास को उस दौरान भी साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को पाक रखें। पाक रखने का मतलब ये कि आप गंदगी जिस्म के और आपके इर्द गिर्द ना लगे। जितनी आपके साथ कम गंदगी होगी, उतनी ही ज़्यादा आप से सिक्योर रहेंगी। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी, ये बातें सच्ची थी कि मुझे वाक़ई इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रहता था। इनफैक्ट मैं तो कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं करती थी। जहाँ पे बैठती थी, जहाँ से उठती थी, वहीं पे सब कुछ हो लग जाता था, जिसकी वजह से मुझे बाद में ख़्याल आता था तो मैं सफाई किया करती थी। बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों में रहना मुझे अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट डस्टबिन में भी मैं अक्सर चीज़ें निकाल के देखती होती थी कि इनमें से कोई चीज़ें निकाल लूँ, और अजीब-अजीब सी चीज़ें निकाला करती थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। फिर उन्होंने हमें किसी और प्रोफ़ेसर साहब के पास भेजा जो कि ये जिन्नाती मामलात और सारी शैतानी चीज़ों के बारे में जानते थे। उन्होंने हमें गाइड किया कि ये चीज़ें इनके ऊपर मौजूद हैं जो कि इन्हें तंग करती हैं और इनके साथ गलत हरकत करती हैं, जिसकी वजह से ये अपने बस में नहीं रहती और वो सब कुछ करती हैं जो वो इन्हें करने पे मजबूर करते हैं, और ये अपना होश खो देती हैं। जब उन्होंने ये बातें की तो अम्मी रोने लग गईं, और अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लग गईं कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये मामलात मेरे साथ तकरीबन 3 साल से ऐसे ही थे, जिसकी वजह से मेरी स्टडी भी बंद कर दी गई थी और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। यानी कि घर तक मुझे मुकीद कर लिया गया था और यहीं पे मुझे रहना पड़ता था, जिसकी वजह से और भी नेगेटिव थॉट्स आती थी, और ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव थी मुझ पे आ जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा गलत किस्म की चीज़ें करने को कहती थी, और फिर ये जब चली जाती थी उसके बाद मुझे होश आता था और मैं माफ़िया माँगती थी और तौबा करती थी। ये सारे मामलात 3 साल से मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहा था। जी, यही वजह थी कि अम्मी-अब्बू के साथ भी मैं बदतमीज़ी कर जाती थी, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा रवैया था मेरा, बहन-भाइयों के साथ भी बुरा रवैया था। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, बहुत ज़्यादा तंग करती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देती थीं, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या-क्या होता था। लेकिन जब से अम्मी-अब्बू ने शादी की बात की थी, तब से आप ही मुझे और भी ज़्यादा बुरे ख़्यालात आ रहे थे, और मैं कभी छत पे जाके डांस करती थी और कभी-कभी मैं बाथरूम में कई-कई घंटे रहती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। लेकिन जब भी मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी होती थी और नमाज़ के लिए नियत बाँधती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और बहुत जल्दी-जल्दी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से अपने रूम में आ जाती थी। मैं नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ कुरान पाक भी नहीं पढ़ सकती थी, और अक्सर और बेशतर तो कुरान पाक मेरे हाथ से गिरने लगता था, और कभी अम्मी और कभी मेरी सिस्टर वगैरह पकड़ लेती थी और मुझे डाँटती थी कि तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, क्यों पकड़ती हो कुरान पाक को? अगर गिर जाता तो? इसी तरह मुझे डाँट पड़ जाती थी। अब मैंने कुरान पाक पढ़ना भी छोड़ दिया था, लेकिन प्रोफ़ेसर साहब ने जब ये सारी बातें अम्मी-अब्बू को बताई, तो अम्मी-अब्बू को समझ आई कि मैं नहीं थी, बल्कि ये कोई और चीज़ थी जो मुझे तकलीफ़ दे रही थी। जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में थी और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। फिर उन्होंने हमें एक अमल बताया कि हमने ये काम करना है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चली जाएँगी, और फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने मुझे सूरह ताहा की आयत अता की, जिसकी वजह से आप ही मेरी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा
तंग कर रही थीं, जिसकी वजह से मेरे रिश्ते मुझसे दूर हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, नापाकी को पसंद करती थी और पाक चीज़ें और पाकी को ने मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे रिश्ते मुझसे दूर हो रहे थे। हर किसी के लिए नफ़रत मेरे दिल में आ रही थी, हर किसी से मुझे अजीब-सी फीलिंग होती थी, वो सब की सब ख़त्म होने लग गई। ये काम के करते ही आप ही अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पावर्स थी वो चली गईं, और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी अता की, और सूरह ताहा की आयत मैं आज तक पढ़ती हूँ। फिर आप ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे लिए अम्मी-अब्बू ने जो रिश्ता देखा था, उस लड़के के साथ मेरी शादी की, और ये मेरे बहुत अच्छे साथी साबित हुए। मेरी शादी को आप ही 3 साल हो गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर-बार और मेरी खुशियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी अता की है, और आप ही जब बेटी पैदा होने वाली थी, उससे पहले भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी वजह भी ये थी कि मैं थोड़ा नापाकी का ख़्याल नहीं रख पाई, जिसकी वजह से इन चीज़ों ने दोबारा मुझ पे असरअंदाज़ होने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि मैं सूरह ताहा की वो आयत पढ़ रही थी जो मुझे प्रोफ़ेसर साहब ने बताई थी, जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में आसानी मिली थी, और मैं दोबारा फिर प्रोफ़ेसर साहब के पास गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने यही सूरतें और यही आयतें पढ़ती रहना है, जिसकी वजह से मेरी प्रोटेक्शन रहेगी। यही वजह थी कि आप ही फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस बुराई से बचा लिया, और हर तरह की नेगेटिविटी को मुझसे दूर रखा। मैं आज तक ये सूरह ताहा की एक आयत रोज़ाना पढ़ती हूँ, काफ़ी ज़्यादा तादाद में पढ़ती हूँ, ताकि मेरी प्रोटेक्शन रहे, और यही वजह थी कि मुझे नापाकी अच्छी लगती थी और पाकी से मुझे नफ़रत थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने अपनी केयर करनी शुरू की है और जब से इन बातों का ख़्याल करना शुरू किया है, तब से मेरे हालात और मेरे मामलात बेहतर हो गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि इंसान को अपनी केयर करनी चाहिए, ताकि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये हमेशा गंदगी में ही असरअंदाज़ होती हैं। जितना इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें दूर रहेंगी। बिल्कुल सिस्टर, अल्लाह का शुक्र ये है कि आपको वक़्त रहते इस चीज़ का एहसास हो गया, और इस चीज़ का आपको अल्लाह ताला ने हिदायत भी दे दी और समझ भी दे दी, और आपके लिए अल्लाह ताला ने रास्ते भी बना दिए। इसी तरह मोस्टली बच्चियों को नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करनी है, किस तरह से अपनी पाकी और साफ़ी का ख़्याल रखना है। अपने आप को जो नेगेटिव डेज़ आ रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा मंथली साइकिल आ रहा होता है, उसमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी एहतियातें हैं जो करनी चाहिए। आजकल का मॉडर्न दौर है, जिसमें कहा जाता है नहीं, ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, हर तरह की जगहों पे जा सकती हैं, और डिफरेंट किस्म की बातें हैं। लेकिन जब इंसान को साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस वक़्त सबसे पहले जो प्रोटेक्शन करनी होती है, वो उन चीज़ों की करनी होती है जो चीज़ें उन दो दिनों में हम यूज़ करते हैं। आप जितनी उन चीज़ों को अच्छे तरीके से डिपॉज़िट करेंगी, अच्छे तरीके से अपनी साफ़-सुथराई रखेंगी, और उस दौरान भी अगर आप तस्बीहात करती रहेंगी, क्योंकि ज़ुबान तो इंसान की पाक होती है, इंसान की ज़ुबान पे तो कोई नापाकी नहीं होती। इसलिए आप जितना ज़्यादा अपने आप को उन दिनों में प्रोटेक्शन में रखेंगी, उतनी ही ज़्यादा इन नेगेटिव चीज़ों से आप बच जाएँगी। मोस्टली बच्चियाँ बहुत सारी गलत हरकत कर जाती हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपका दिल चाहता था कि आप घर से भाग जाएँ, किसी लड़के के साथ या किसी भी वजह से आप घर से चली जाएँ। लेकिन जब लड़की घर से चली जाती है, चाहे वो खुद जाए या किसी के साथ जाए, तो उस पे इल्ज़ाम यही लगता है कि वो यकीनन किसी मर्द के साथ ही मुलविस होगी, जिसकी वजह से वो घर से चली गई। लेकिन इस तरह के मामलात भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियों को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, बहुत सारी बच्चियों के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं, और बाज़ औक़ात तो बच्चियाँ मिलती भी नहीं। तो यही वजह होती है कि इन हर औरत को, हर बच्ची को और हर किसी को अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अल्लाह ताला से मदद माँगनी चाहिए, जितना हो सकता है अल्लाह ताला से मदद माँगे, क्योंकि हर तरह की आज़माइश और हर तरह की तकलीफ़ में से निकालने वाले अल्लाह ताला हैं। अल्लाह ताला हमारे साथी हैं, अल्लाह ताला हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, अल्लाह ताला हमारा ख़्याल करते हैं। इन चीज़ों में पढ़ के हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं, जो कि हमारे माइंड को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, और हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में डाल देती हैं। बहन, भाई, रिश्तेदार, इन सब से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है।
قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں تو ہر جگہ پہ یہی دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے قطع تعلقی نہیں کرنی، اپنوں کے ساتھ خوشی سے رہنا ہے، اپنوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، اور صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بات پرفیکٹ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے بہتر بنائے، اپنا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرے، ہر طرح کی جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ ہی مدد دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ جب ہم انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے مقدر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اپنی جو بھی تکلیف ہے، جو بھی حاجات ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبولیت دیتے ہیں۔ تو اپنی جتنی زیادہ ہو سکتی ہے پروٹیکشن کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔